जींद में किसानों की महापंचायत, हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हुए और सरकार को सीधा किसान आज चेतावनी दे रहे हैं। आपको लेकर चलते हैं सीधा जींद, देखिए। मंगा बाकी है सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ घर वापसी ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। मैं एक गल जोर दे के कहना कि ਉਹ ਮੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ MSP ਵਾਲਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਨਾ MSP ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ना साडा जेड़ा 700 शहीद है भाई साहब आप कैसे हो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਵਾਲਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, 5 ਜਾਂ 6 ਸੂਬੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਿਛਾ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੋਈ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਰਾਵੋ ਇਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰਾਹ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਮਲਹੋਤਰੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ ਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਆ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਕੱਲੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਵੜਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਊ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਊ। ਫੇਰ ही साडी ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ तो जींद से सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। एक बड़ा कार्यक्रम आज एक बड़ी महापंचायत किसानों की तरफ से की गई और राकेश टिकैत, बता दें हमको कि राकेश टिकैत जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं इस महापंचायत का, और लगातार जो किसान संगठन के जो नेता पहुंचे उनको आप सुन रहे हैं। और इसी बीच तमाम जानकारी के साथ राहुल राणा हमारी एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, क्या कुछ इस वक्त जींद में चल रहा है और जो किसानों ने आज हुंकार भरी है उसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए अंजलि, बिल्कुल साफ तौर पर जींद में कई बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुंच रहे हैं और आपकी पंचायत में समय है, क्योंकि अभी तक जो बड़े नेता है वो भी यहाँ अभी तक पूरी तरह नहीं पहुंच रहे हैं। गुरप्रीत सिंह यहाँ पर, राकेश टिकैत और जो भारतीय किसान यूनियन के और जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो बड़े लीडर हैं वो इस पंचायत में पहुंच रहे हैं। अब आप तस्वीरें भी हम लगातार लाइव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं भारी संख्या में पहुंची है और इस पंचायत का कहीं ना कहीं मकसद साफ तौर पर यही है कि एक बार फिर किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर 2024 के चुनाव से पहले एक बार हुंकार भर सकता है दिल्ली के लिए।
जैसे वक्ताओं को हम सुन रहे थे कि वक्ता जो है साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि यहाँ ये जो पंचायत है वो इसीलिए बुलाई गई है कि जो कुछ समय पहले स्थगित की गई थी वहां आंदोलन दिल्ली में, उस आंदोलन को अब दोबारा बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जो किसानों से सरकार ने कहा था कि वो उनकी मांगों को मान रहे हैं और यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उस कमेटी के बाद भी आज तक तो किसानों को एमएसपी मिली है। हालांकि कानून वापस जरूर हुए थे, लेकिन उसके बाद जो तमाम वायदे किसानों से किए गए थे, कहीं ना कहीं सरकार पर ये आरोप यहाँ किसानों ने लगाया है कि उन वादों को पूरा करने में जरूर नाकाम यहाँ पर सरकार दिखाई दी। और राकेश टिकैत लगातार जिस तरह से भले ही पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहे, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और किसानों के बीच लगातार जाकर ये कहते हैं कि एक बार फिर बड़ा आंदोलन की तैयारी किसानों को यहाँ कर लेनी चाहिए। ट्रैक्टर, ट्विटर, ये तमाम चीजें, संसाधनों को लैस कर किसानों को जो है वो आगे आना होगा और अगर अपनी जमीन और अपनी नस्ल और अपनी फसल को बचाना है तो किसान एक बार फिर सड़कों पर आना होगा और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा, क्योंकि आज 26 जनवरी है और बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। देश आज कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस आज 74वां हमारे मनाया जा रहा है और इस मौके पर पूरे देश में एक पर्व के तौर पर हम भारत में मनाया जाता है। और लेकिन आज जब इसी दिन को काला दिवस के तौर पर भी यहाँ पर किसान मना रहे हैं, क्योंकि इसी 26 जनवरी को जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो लाल किले पर देखा कि किस तरह से वहां पूरा हंगामा हुआ, किसानों पर लाठीचार्ज हुए और वहां कुछ शरारती तत्वों ने इस आंदोलन को छीन भिन्न करने की भी कोशिश की और तमाम वो चीजें हुई। आज उसी का एक नतीजा, ये लाइव तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये बता रही है तस्वीरें कि यहाँ इस वक्त जो किसानों के अंदर जो जोश है और वो जो उनके साथ दर्दनाक घटना हुई उसको वो भूले नहीं और शायद भूलना भी नहीं चाहते। तो ये साफ तौर पर आज किसानों की इस महापंचायत में आप ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि एक बार फिर किसान उसी मूड में साफ दिखाई दे सकते हैं जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा पूरे भारत में सभी किसान संगठनों को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहा है और सभी किसान संगठन अब जो है वो जगह जगह पर तमाम जो किसान संगठन के नेता हैं वो जाकर वहां पर मांग कर रहे हैं कि कैसे सरकार जो है वो उनकी मांगों को पूरा करे, क्योंकि बात एमएसपी और किसान बिल की तक नहीं दिखी, क्योंकि वहां ऐसे तमाम मुद्दे जो किसानों के थे वो वहां उठाए गए थे और उसी समय जब कई दौर की बैठकें सरकार के बीच में हुई, किसानों के साथ जो बैठकें हुई उस दौर पर वहां कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि शायद अब बात किसानों की बन जाएगी और बात बनती भी दिखी। कहीं ना कहीं सरकार खुद झुकी भी, प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगी और कानून को वापस लिया, लेकिन 26 जनवरी वो दिन किसान शायद नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि उसी दिन उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और उसी दौरान जो वहां पर पूरा किसान एकजुट हुआ और उसके बाद सरकार को भी झुकना पड़ा था। लेकिन सरकार ने जो वादा किया था उस वादे पर कहीं ना कहीं अब किसानों ने सवाल खड़े किए हैं और ये कहना है किसानों का कि अब अगर एमएसपी का कानून जो वो मांग कर रहे हैं, अगर एमएसपी सरकार गारंटी नहीं देती है तो वो एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। और ये चुनाव के दौरान पहले भी हुआ, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए इसका खास असर नहीं देखा गया, भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में बनी। लेकिन एक बार जब 2024 की सुबह अब देश में होने लगी है और ये कहा जाने लगा है कि अब जो है साफ तौर पर 24 से पहले सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, लेकिन अब आखिर जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि क्या इस आंदोलन के जरिए एक बार किसान जो है अपना हल जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो लोग नहीं मानने वाले और लाखों की संख्या में ट्रैक्टर को लेकर एक बार फिर दिल्ली में चढ़ाई कर सकते हैं। यानी एक बार फिर सरकार के सामने ये मुसीबत खड़ी हो सकती है कि आखिर कैसे किसानों को समझाया जाए। आगे आने वाला चुनाव है और चुनाव से पहले अगर किसानों की नाराजगी बढ़ जाती है तो वो सरकार के लिए संकट खड़ा कर सकती है। लेकिन एक बार फिर 26 जनवरी में एक बार याद दिलाना चाहूंगा, गणतंत्र दिवस तो पूरा देश जो है इसे पर्व के
तौर पर मना रहा है, दूसरी ओर किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज एक सांकेतिक तौर पर ये एक इकट्ठा होकर अब लोग जो है चर्चा बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये मैसेज एक बड़ा जा रहा है क्योंकि इस पंचायत पर देश के तमाम राजनीतिक लोगों की, मीडिया की पूरी नजरें बनी हुई है और इससे ये साफ तौर पर देखा भी जा रहा है कि क्या आखिर जो है इस पंचायत का नतीजा निकलने जा रहा है, क्योंकि तमाम जो मीडिया है वो पूरा जिंद में लगा हुआ है और यहाँ पर जो राकेश के और तमाम जो बड़े नेता है वो किसान नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये मंच जो है वो सिर्फ किसानों के लिए ही बनाया गया है। इसमें किसी राजनीति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके जो मायने हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे। ये समझने की बात है क्योंकि ये तस्वीर जो है वो एक बार फिर उस पुरानी 26 जनवरी को याद दिला रही है और उस किसान आंदोलन को याद दिला रही है। उस दिल्ली के जो बॉर्डर पर बैठे हुए किसान थे उनकी याद दिला रही है। तो यानी साफ तौर पर ये एक बड़ा संकेत किसान यहाँ दे रहे हैं कि हम यहाँ इकट्ठा हुए, इसका मतलब साफ तौर पर ये समझिए कि हम उस दिन को नहीं भूले और आज काला दिवस के तौर पर ये लोग मना रहे हैं और ये चाहते हैं कि किसान कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ये एक मुफ्त है और ये बताने की सरकार को कोशिश है कि अगर या तो मान जाइए, नहीं तो उनके खिलाफ फिर से वो आंदोलन करेंगे और उसी आंदोलन की रूपरेखा और उसी आंदोलन की रणनीति यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए राहुल जी, जिस तरीके से 24 का चुनाव भी नजदीक आ गया है और निकाय चुनाव की अगर बात करें, निकाय चुनाव भी है तो कितना मुश्किल, क्योंकि जो ये एक किसान आंदोलन देखने को मिल रहा है फिर से, कहीं ना कहीं ये वाकई बढ़ा सकता है भाजपा की टेंशन। बिल्कुल, देखिए भाजपा की टेंशन जाहिर तौर पर बढ़ा ही सकता है, क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ ये किसान एक बार फिर दिल्ली में लामबंद होता है तो ये सरकार के लिए मुसीबत तो पैदा हो गई ही, क्योंकि सरकार अपना जो चुनाव के लिए सरकार तैयार कर रही है, विपक्ष राजनीति कर रहा है और लगातार सरकार पर हमलावर है और किसानों का मुद्दा आज के समय में कांग्रेस हो, दूसरी तमाम दल हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, ऐसे कोई संगठन नहीं है जो किसानों के मुद्दे को पीछे हो। लेकिन भाजपा भी इस बात को लेकर कहती है कि वो किसानों के हित की बात कर रही है, लेकिन बात जो है वो किसानों तक जो कि सरकार समझाना चाहती है वो किसान नहीं समझना चाहते। किसान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ एमएसपी कानून की गारंटी दे दीजिए ताकि हम अपनी जो फसल है उसको कम से कम मिनिमम प्राइस रेट पर बेच सके और कम से कम किसान को एक ये आश्वासन मिल सके कि आखिर जो उसकी फसल का रेट तय सरकार ने किया है उससे कम दाम में उसकी फसल न बेची जाए। क्योंकि अभी अक्सर देखा यह जाता है कि अगर यूपी के किसान है वो अपनी धान की फसल को या अपने दूसरी फसलों को बेचने के लिए जब वो मंडियों में जाते हैं तो वहां पर वो अपनी फसल को औने पौने दामों में बेचकर भी आते हैं और जब बात होती है कि वहां कैसे वो उनके भुगतान की बात हो, कहीं ना कहीं उन सब चीजों से बचने के लिए किसान प्राइवेट सेक्टर में जाकर उन फसलों को बेचते हैं और वो मानक कोई तय इस बात को लेकर नहीं होते कि आखिर जो फसल है उसके प्राइस क्या रखा जाए, प्राइस मनी पर बात होती है। इसीलिए किसान यहाँ एमएसपी की बात कर रहा है। एमएसपी पर अगर उनको खरीद होती है तो वो कहीं ना कहीं फायदे में होंगे, क्योंकि आज के समय में किसानी एक घाटे का सौदा होता जा रहा है। जिस किसानी से पूरे कोरोना काल में हम सब ने देखा कि कोरोना काल में अगर आर्थिक स्थिति को संभाले हुए था तो कहीं ना कहीं वो किसान उद्योग ही था और ये किसान जो है वो साफ तौर पर आज तंगी की हालत में है। तमाम ऐसी चीजें साफ तौर पर दिखाई देती है कि कैसे जो है वो यहाँ अपनी इस तंगी से खुद को बाहर निकाल सके और सरकार से ये उम्मीद लगातार करता किसान है कि वो उनके लिए राहत की बात करे, भले ही कर्जा माफ करने की बात होती हो, भुगतान की बात होती हो या फिर भाव की बात होती हो। तो आज वही उसी तमाम मांगों को लेकर किसान यहाँ चाहता है और किसानों की यही मांग है कि जो किसान अपनी सामान खरीदता है, जो खेती से संबंधित उनको ट्रैक्टर, डीलर, तमाम हैरो, वो सब चीजें जो संसाधन उनको जरूरत होती है उस पर सरकार कहीं ना कहीं सब्सिडी दे, क्योंकि किसान ये एक ऐसी मेहनत का से कौम है जो पूरे देश को खिलाती है और पूरे देश के लिए
व्यवस्थाएं करती है, लेकिन सरकार जो है उसको लेकर ये दावा भी करती है कि हमने किसानों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं की, लेकिन बात सालों से चली आ रही है और सामंजस्य जो बनाए जाने की बात हो रही है, वो सामंजस्य सरकार और किसानों के बीच यहाँ नहीं बनता दिखाई दे रहा। इसलिए ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि किसानों को आखिर कैसे सरकार जो है वो मना पाए, क्योंकि अभी तक ऐसा जो नहीं दिखाई दे रहा है। और राकेश टिकैत जो किसान नेता, बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए, वो यहाँ लगातार आंदोलन के जरिए, पंचायतों के जरिए और गांव-गांव की नुक्कड़ सभाओं के जरिए वो ऐलान कर चुके हैं कि लोगों को तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अब ये किसान आंदोलन वहां से स्थगित हुआ कि अब किसान एकजुट हो, इस तरह से बड़ी संख्या में नहीं जुटेंगे, लेकिन जुटे और अब फिर वहां पर जो है उसी तैयारी को करते हुए किसान नेता है और इसी किसान नेताओं की तैयारी का एक हिस्सा जिंद की हरियाणा में 5 महापंचायत है और इसी महापंचायत को कामयाब करने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ किसान, महिलाएं, पुरुष जो है वो यहाँ भारी संख्या में पहुंचे हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि इस पंचायत का आखिर फैसला क्या होगा, नतीजे क्या निकलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की हरियाणा के जींद से, जहां भारी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं और यूपी से भी बता दें आपको कि हजारों सैकड़ों की संख्या में जो है किसान वो पहुंच चुके हैं। और तस्वीरें लगातार एक्सक्लूसिव इस वक्त की हरियाणा से हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के जींद में आज किसान की महापंचायत है, जहाँ हजारों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। तस्वीरों